مومل رانو۔ وادی سندھ کے ریگستانی علاقے عمر کوٹ کے بادشاہ حمیر سومرو اپنے دوستوں ڈمر بھٹی، سینڑو دھماچانی اور اپنے برادر نسبتی رانا مندرا کے ہمراہ سیر و شکار کرتے ہوئے سندھ کی سرحدوں سے نکل کر جیسلمیر کے قریب ایک جنگل میں جا نکلے اور وہیں اپنے خیمے گاڑ دیے۔ ایک دن جنگل میں گھومتے گھامتے ان کی نظر ایک ایسے فقیر پر جا پڑی جن کے ہاتھ پیر زنجیروں میں بندھے ہوئے، سر پر تاج شاہی، ریشمی کپڑوں میں ملبوس، مٹی سے اٹا ہوا جسم، ننگے پیر، بھوک سے نڈھال اور مومل مومل کی پکار کرتے ہوئے بے حال نظر آتا ہے۔ رانا مہندرا اور اس کے ساتھی یہ سب دیکھ کر حیران ہوتے ہیں اور اس کے پاس جا کر اس سے ماجرا معلوم کرتے ہیں، اور وہ شخص اپنے چشم تر سے اپنی روداد بیان کرتا ہے۔ ایسے میں وہ ایک اندیکھے حسن بے مثال کی تعریف بیان کرنے لگتا ہے جس نے اسے بادشاہ سے گداگر بنا دیا ہے۔ تاج محل کی وہ افسرہ جو دیو مالائی کہانیوں میں پریوں کے حسن سے بھی زیادہ حسین ہے، جسے دیکھ کر سفید گلاب کے پھول بھی شرمائیں، برفانی آبشار کی طرح صاف شفاف، شبنمی قطروں سے زیادہ نفیس، ریگستانی ہرنی کے دودھ سے کہیں زیادہ سفید رنگت، چودھری کے چاند کے سنہری کرنوں جیسی چمکتی ہوئی آنکھیں، ہرنی جیسی چال، پھولوں کی پتیوں سے بھی زیادہ نفیس، نازک جیسے کوئی باد صبا کا خوشگوار جھونکا۔ اس شاہکار قدرت کا دوسرا نام ہے مومل۔ ارے بھول جاؤ اسے، ایک سنہرا خواب سمجھ کر بھول جاؤ اسے، سراب سمجھ کر میں کہتا ہوں بھول جاؤ، چلے جاؤ۔ واہ واہ، کیا کہنے فقیر سائیں، یہ کس حسن لازوال کی تعریف ہو رہی ہے جس سے ہم جیسے شہنشاہ اب تک محروم ہیں۔ ہم اسے حاصل کر کے رہیں گے، ہم اسے ملے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ بادشاہ سلامت، آپ خامخواہ جذباتی ہو رہے ہیں، یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ آپ اس پاگل عاشق کی باتوں میں نہ آئیں، چلیے چلیے حضور، ہم واپس چلتے ہیں۔ ایک عاشق بے ضرر ہوتا ہے، وہ کیا کسی کو نقصان پہنچائے گا؟ ارے میں تو خود کہتا ہوں، تم لوگ بھولے سے بھی کاغ محل کا رخ مت کرنا۔ یہ کاغ محل ایک دھوکہ ہے، یہ کاغ محل ایک فریب ہے جسے ایک نہ ایک دن گرنا ہوگا۔ ارے مومل، پھر تم کو بھی ایک دن اپنے پیار کو ترسنا ہوگا، تمہاری آنکھوں سے بھی آنسوں کو برسنا ہوگا، کوئی تجھے رلائے گا اور تیرے حسن کو ہم روئیں گے، ہم روئیں گے۔ ہم نے جس حسن کی بے انتہا تعریف سنی ہو، ہم اسے دیکھے بغیر واپس کبھی نہیں جائیں گے، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر ہی رہیں گے۔ بادشاہ سلامت، اس دیوانے کی باتوں میں نہ آئیں، یہ ہمیں اس جنگل میں بھٹکا دے گا۔ اب ہمیں واپس عمر کوٹ لوٹنا ہوگا، بہت گھوم لیا، چلیے حضور۔ نہیں رانا، نہیں، اب ہم واپس نہیں جا سکتے، ہمیں ان خوابوں کے ریگستان میں بھٹکنا منظور ہے۔ اب کاک محل کی طلسمی نگری ہماری اگلی منزل ہوگی۔ کیا بات ہے، یہ دل فریب اور حسین نگری جیسے کسی شہنشاہ کے محلات ہوں، جیسے کوئی جادوئی نگری ہو۔ یقیناً اس محل کی تمام تر رانائیاں اس حسین و جمیل دوشیزہ کی عکاس ہیں۔ سائن سومالی، لگتا ہے کہ آج پھر کوئی شہزادہ کاک محل آ پہنچا ہے۔ میں بھی یہی سمجھتی ہوں۔ ناطر، تم جلدی جا کر اس سرفرے عاشق کو مومل کو حاصل کرنے کی ساری شرائط سے آگاہ کر دو۔ جی سائن، ابھی تک تو کاک محل کی شرائط پر کوئی پورا نہیں اترا، دیکھ لیتی ہوں اس کو بھی کیا کرتا ہے۔ کاک محل کی اس ادنا سی داسی کو ناطر کہتے ہیں۔ اگر آپ مومل سے بیا رچانے کی غرض سے آئے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں آپ کو چند شرائط پر عمل کرنا ہوگا۔
अगर आपने उन्हें पूरा किया तो मुमल हमेशा के लिए आपकी बन जाएगी, वरना आपको अपने तमाम माल और असबाब से हाथ धोना पड़ेगा। मुझे ये तमाम शराइत मंजूर हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मुमल को हासिल करके रहेंगे। पहली शर्त यह है कि हमारी मुमल रानी ने आपके लिए चनों का थाल और सूत भेजा है। तुम नहीं जानती कि मैं उमरकोट का बादशाह उमैर सुमरो हूँ। मैं इन चनों और उलझे हुए सूत को लेकर क्या करूँगा? हुजूर पर से कुर्बान जाऊं, चने और सूत पसंद नहीं तो क्या हुआ? आइए अब मेरे साथ महल के बाग में चलिए। बाग की भूल भुलैयों से निकलकर महल तक पहुंचना दूसरी शर्त है। इसी तरह काक महल की बाकी शराइत को पूरा करके मुमल को हासिल करना होगा। नातर, मुझे महल के बाग तक ले चलो। आपका हुक्म सर आंखों पर। आइए मेरे साथ बादशाह सलामत। यहाँ से बाग की भूल भुलैयां शुरू होती हैं। अब आप अपनी अक्ल सलीम से उन्हें अबूर करेंगे और कनीज आपकी रहनुमाई करेगी। तुम्हारी बातों से अपनायत का एहसास होता है नातर। जरा संभल कर। बादशाह सलामत, आगे खारदार झाड़ियाँ हैं, कहीं उलझ न जाना। तुम फिक्र न करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। अरे ये अचानक नातर कहाँ चली गई? नातर, तुम कहाँ चली गई हो? तुम तो मेरे साथ थी। नातर, मुझे तो ये भूल भुलैयां समझ में नहीं आती। नातर, सामने आओ, देखो मेरी मदद करो। ये तो बहुत चालाक निकली, मुझे झांसा देकर गायब हो गई। नातर कहाँ हो तुम? मैं तो चल चल कर निढाल हो गया हूँ, न जाने किस गोरख धंधे में फंस कर रह गया हूँ। ये कुछ हथियारबंद सिपाही मेरी तरफ आ रहे हैं। शायद काक महल के मुहाफिज हैं। बादशाह सलामत, आप अपनी शराइत हार चुके हैं। अब आपके तमाम मालो जर पर आपका कोई हक नहीं रहा। अब ये सब कुछ काक महल की मिल्कियत है। अब आपको तने तना यहाँ से बाहर जाने में हम मदद करते हैं। आइए चलिए हुजूर। रात गुजरने को है, बादशाह सलामत अभी तक नहीं आए। मुझे तो फिक्र हो रही है। मैं समझता हूँ कि बादशाह सलामत ने काक महल के तमाम शर्त पूरे करके हसीना जमील दोशीदा मुमल को हासिल कर लिया होगा। मैं भी यही कहने वाला था। बादशाह सलामत अपने मन की बाजी में जीत ली होगी। पागलों जैसी बातें मत करें। अगर ऐसा होता तो अब तक नक्कारों और शहनाइयों की आवाजें गूंज उठती। देखिए बादशाह सलामत आ गए। हाँ, आ गए बादशाह सलामत, आ गए। सच कहते हो राणा, मैं तो हार चुका हूँ। सब कुछ लुटाकर वापस आया हूँ। कोई फिक्र नहीं करे बादशाह सलामत, कल तुले आफ्ताब से पहले मुमल आपके कदमों में होगी। अरे जाहिल, हुस्न की कदमों में नहीं बल्कि दिल में जगह होती है। फिर भी हम उस मगरूर हसीना के गुरूर को खाक में मिलाएंगे। कल ही काक महल में डमर भट्टी अपनी किस्मत आजमाएगा और उसकी नाकामी के बाद राणा महेंद्रा को इस मुहिम को सर करने के लिए जाना होगा। आप फिक्र नहीं करें बादशाह सलामत, हम में से एक न एक इस मुहिम को सर करने में कामयाब हो जाएंगे। इस तरह अमीर बादशाह की ख्वाहिश पर सीढ़ों और डमर भट्टी मुमल को हासिल करने की गर्ज से काक महल में अपनी किस्मत आजमाई करते हैं, मगर वो भी अपना सब कुछ लुटाकर नाउम्मीद लौटते हैं। बिलाखिर अमीर बादशाह के बेहद इसरार पर राणा महेंद्रा काक महल रवाना होते हैं। बस करो, इतनी जोर से आज तक ये नकारा किसी ने नहीं बजाया। ऐसा लगता है कि महल के दोनों दीवार हिल रहे हैं। ये पहला मौका है कि इतनी सुबह किसी साइल ने सदा दी हो। कहो क्या चाहते हो? मैं कोई गदागर नहीं, मैं तो इस काक महल की दोशीदा मुमल को अपनाने आया हूँ। जाओ जाकर अपनी मालकन मुमल से कहो कि उमरकोट से राणा महेंद्रा काक महल की दहलीज पर पहुंच चुका है। आप जैसा गबरू जवान अगर मेरी मुमल रानी का हाथ थामे तो मेरे लिए इससे बढ़कर और खुशी की बात क्या होगी। मैं अभी जाकर अपनी मुमल रानी से आपका तस्करा करती हूँ। मेरी भागने वाली मुमल शहजादी,
आज ऐसा कड़ियल जवान काक महल की चौखट पर आपको हासिल करने आया हूँ जिसे देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या उसका कद है, कैसी उसकी रंगत है और क्या उसकी जिसामत है। अपने इरादों में मजबूत और पुरवकार शख्सियत वाला ये खूबसूरत नौजवान हमारी रानी मुमल के लिए मौजू है। नातिर, तुम एक शख्स की ताकत और वजह से मुतासिर होकर कैसे कह सकती हो कि वही मुमल के लिए मौजू है? मुमल कोई आम सी चीज नहीं, मुमल तो मलकाए हुस्नो जमाल है, उससे हासिल करना इतना आसान नहीं। अच्छा छोड़ो इन बातों को, जाओ चनों का थाल और उड़जा हुआ सूट लेकर जाओ। दस्तूर के मुताबिक शराइत की शुरुआत करो। ऐसा ही होगा मेरी सायाण, मैं अभी जाती हूँ। राणा मेंद्रा, आप तो जानते होंगे कि शहजादी मुमल का रिश्ता मांगने वाले को कुछ शराइत पर पूरा उतरना होता है। लीजिए, मुमल शहजादी ने आपके लिए आगाज में चने और उलझा हुआ सूत भेजा है। ओह चने तो मेरा घोड़ा शौक से खाता है, और रही बात उलझे हुए सूत की, उसे काटकर घोड़े के गले का हार बना दूंगा। वाह राणा वाह, आप तो खासी अक्लमंद हैं। सच तो ये है कि हमारी मुमल रानी ने ये तोहफा आपके घोड़े के लिए ही भेजा था। आप पहले शख्स हैं जिसने काक महल की पहली शर्त जीती है, और अब आपको दूसरी शर्त के मुताबिक महल के अंदर भूल भुलैया पार करके बाग में चलना होगा। मुझे हर शर्त मंजूर है। वो जो सामने आप बाग देख रहे हैं ना, वहाँ पर दुनिया के नायाब और खूबसूरत फूल बड़े करीने से लगवाए गए हैं। और वो जो दरख्तों का झुंड देख रहे हैं ना आप, वो ऐ नातर, मुझे धोखा देकर इन भूल भुलैयों से निकलने की कोशिश मत करो। अरे मेरी तुम क्या समझती हो? क्या तुम मुझे भी बेवकूफ बनाओगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाय अल्लाह, मेरी चुटिया तो छोड़ो। राणा, तुम वाकई मेरी मुमल रानी के लायक हो। तुम मेरी अय्यारी को जानकर काक महल की दूसरी शर्त को जीत चुके हो। अब मेरी यहाँ हद खत्म होती है। अब आपको अपनी अक्ल दानिश से काक महल में दाखिल होना है। चलिए राणा मेंद्रा, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये किसी शेर के दहाड़ने की आवाज लगती है। तो क्या काक महल में शेर भी रहते हैं? ओह, ये क्या महल के चारों तरफ बबर शेर भी? नहीं बाबा नहीं, इनसे बचकर महल तक जाना कैसे मुमकिन है? घबरा क्यों रहे हो? तुम्हें तो मुमल को हासिल करना है। हौसला पाओ राणा और आगे बढ़ो। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। मगर ये कैसे शेर है? अपनी जगह से थोड़े भी नहीं है। मुझे तो ये भी फरेब लगता है। मैं समझा, ये तो कोई तिलस्मी महल है। अरे राणा मेंद्रा, अब कोई अकल की चाल चल। हाँ, अकल की। राणा मेंद्रा, ये तो नकली शहरी है। अब तक तो मुझ पर हमलावर हो चुका। अरे अब मैं कहां पहुंच गया? इतना बड़ा कांटे मारता हुआ तालाब। मैं समझता हूं कि ये सब कुछ भी शराब है। अच्छा, ऐसा करता हूं, अपनी जेब से सिक्का निकाल कर फेंकता हूं। हकीकत खुद ब खुद वाज़ेह हो जाएगी। अरे ये क्या? ये तो फर्श है। तालाब तो महज फरेब है। ये सब कुछ एक धोखा है। अब मुझे बिला झिझक अंदर जाना चाहिए। वाह, इतना बड़ा खूबसूरत कमरा, मगर ये तो खाली है। अरे यहाँ इतने सारे पलंग रखे हुए हैं, मगर क्यों? राणा, उजलत से काम नहीं लेना। यहाँ तो कदम कदम पर जादू के जाल बिछे हुए हैं। जरा सोच कर, जरा संभल कर। इन 7 पलंगों में से एक पलंग पर बैठना होगा, मगर यहाँ भी कोई चाल लगती है।
अच्छा, अपने असा से इन पलंगों को टटोल कर देखता हूं। देखा ना, ये भी धोखा। इन खूबसूरत बिस्तरों के नीचे खाई है, मगर ये सातवां बिस्तर दुरुस्त है, क्योंकि ये असा से दबाने पर ठीक महसूस हुआ। अरे राणा, तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए हो। अब इस पलंग पर लेटकर अपनी कामयाबी के गीत गाओ। हाँ, कामयाबी के गीत गाओ। सायण सुमल, देखा आपने? राणा मेधरा तो तमाम शराइत जीतता हुआ महल के ख्वाबगाह तक पहुंच चुका है और अपनी मूमल रानी का हाथ थामने का इंतजार कर रहा है। हाँ नातिर, मैं पहली मर्तबा इस शख्स की अक्ल फहम से हार गई हूँ। बेशक राणा मेंद्रा हमारी मूमल के लायक है। तुम जाकर राणा मेंद्रा को हमारी तरफ से मुबारकबाद का पैगाम दो और उसे बताओ कि पास वाले ख्वाबगाह में कुछ हसीन दोशीज़ाओं की झुरमुट से वो अपनी मूमल को तलाश करे। जो हुक्म सायण का, ऐसा ही करती हूँ। मुबारक राणा मेंद्रा, मुबारक हो। आप काक महल की तिलिस्मी नगरी को बोर करके दुनिया की हसीन अप्सरा मूमल के मालिक बनने वाले हैं। अच्छा, मूमल की बहन सुमल ने आपको पेशगी मुबारकबाद दी है। अब आपको सिर्फ पास वाली ख्वाबगाह में बैठी हुई खूबसूरत हसीनाओं में से अपनी मूमल को पहचानना होगा और फिर मूमल और आपका मिलन एक हकीकत बन जाएगा। हाँ, तो चलिए, देर किस बात की है नातिर? वाह, क्या कमाल है। एक से एक हसीन दोशीज़ा, मगर इनमें मेरी मूमल कौन सी है? अरे मैं पहचान गया, मूमल तो वही होगी जो सबसे मुख्तलिफ होगी। वो सामने एक भंवरा मूमल के सर पर मंडला रहा है। यकीनन उसने अपने बालों में खुशबूदार तेल लगाया हुआ है। हाँ, यही है मेरी मूमल, यही है मेरी मूमल। वक्त गुजरने का एहसास तक नहीं रहा मूमल। पूरे 7 दिन गुजरने के बावजूद ऐसा महसूस होता है कि जैसे आज ही हमारी शादी हुई है। मैं अपने आप को दुनिया का बड़ा खुश नसीब इंसान समझता हूँ। अब तो मेरी जिंदगी आपसे मौसूम है। आपसे अलग होने का सोच भी नहीं सकता। राणा, आपने तो मेरे दिल की बात चुरा ली है। मूमल अपने आप को आपके बगैर कभी मुकम्मल नहीं समझती। अब मूमल जिएगी तो आपके नाम से और मरेगी भी तो आपके नाम से। पूरे 7 दिन गुजर चुके हैं मगर राणा की कोई खबर तक नहीं मिली। उसे मूमल क्या मिली, सब कुछ भूल चुका। ये भी नहीं सोचा कि कुछ दोस्त और अहबाब उसके इंतजार में हैं। अब बहुत हो चुका, अब मजीद इंतजार नहीं किया जा सकता। अब हमें वापस उमरकोट जाना होगा। आप सच कहते हैं बादशाह सलामत। हम सोच भी नहीं सकते थे कि राणा हमें इतना फरामोश कर सकता है। एक औरत के लिए अपने मौजूद साथियों को भुला दिया, शादी में शिरकत की दावत तक न दी। हुजूर, अब इसे मजीद रियायत देने की कोई जरूरत नहीं। अभी कासिद रवाना करके इसे बुलवाया जाए। अब बहुत हो गई। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। शाही सिपाही के हमरा राणा मेंद्रा आपसे मुलाकात के लिए आ रहे हैं। उमरकोट के बादशाह सलामत हमीर सुमरों की खिदमत में राणा मेंद्रा सलाम अर्ज करता है और अंदर आने की इजाजत चाहता है। पहले तो कभी अंदर आने की इजाजत नहीं मांगी। मैं सब जानता हूं। तुम मुझ पर रोब झाड़ने आए हो। ऐसा न कहिए मेरे हुजूर। मुझे आपसे भला हम पला होने की क्या जरूरत है हुजूर? एक बात समझ में नहीं आई, क्या राणा अपने बहनों से अपनी बीवी का पर्दा कराएगा? इसका मतलब यह है कि तुम अपनी बीवी का मुझसे पर्दा करवाओगे? नहीं हुजूर, ऐसी कोई बात नहीं। वो गैर मर्दों से पर्दा करती है। मगर हम तो गैर मर्द नहीं उनके लिए। हाँ, मेरे जहन में एक तरकीब है। हाँ,
कहो। कल आप देहाती बनकर आएंगे तो मुलाकात हो सकती है। मुझे मंजूर है। मैं भी तो देखूं उस हुस्न जमाल को जिसे राणा ने जीता है। मेरी मुमल रानी का सुहाग सलामत हो। राणा साईं, आपके वतन का कोई बेली साथी बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा है। ओहो, ये सवेरे सवेरे कौन सा मेहमान आ गया? मेहमान को इज्जत के साथ मेहमान खाने में बिठाया जाए नातिर। ये तो बिन बुलाया मेहमान हुआ मुमल। हमें मालूम है राणा, मगर आपकी तरफ से आए हुए तिनके की भी हम इज्जत करेंगे। सबसे पहले आपको शादी की ढेरों मुबारक हो। आपकी शादी का सुनकर ढोर ढंगर छोड़ छाड़ कर भागता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा हूँ। आपको देखकर सारी थकन दूर हो गई। मुमल, ये हमारे वतन का गवालिया है। मैं भाभी साहिबा का एहसानमंद हूँ जिसने एक गवालिये को कदर की निगाह से देखा। अगर भाभी साहिबा को नागवार ना गुजरे तो इस गरीब गवालिये की जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश को रुखे ज़ेबा से ये नकाब हटाकर पूरा किया जाए तो बंदा आपकी इस फयाजी के गुण गाता रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हमारी मुमल अपने ससुराल से आए हुए मेहमान की ख्वाहिश का जरूर एहतराम करेगी। हम तो आपके हुक्म के पाबंद हैं राणा। हम इनकी ख्वाहिश का जरूर एहतराम करेंगे और हम अपने मेहमान से गुजारिश करते हैं कि आज हमारा गवालिया बीमार हो गया है, मेहरबानी करके हमारी भूरी भैंस का दूध दोह दे। हम नाश्ते पर इनकी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे। नातिर, मेहमान खास को बाड़े में ले जाओ। कहाँ मर गए सारे के सारे? जल्दी करो और सामान बांधो, उमरकोट चलने की तैयारी करो। अब तो सब्र की हद हो गई है। हुजूर, मैंने आपको वहां जाने की मुखालफत की थी। मैं जानता हूं कि राणा बहुत मक्कार है। तुम ठीक कहते हो। राणा वाकई बड़ा मक्कार और चालाक है। इसने मुमल के सामने मेरी बेइज्जती कराई है। मेरा तारुफ एक मामूली गवाली के रूप में कराया और मुमल को भी पर्दे में रखा। मैं इंतकाम की आग में जल रहा हूँ। मैं राणा से ऐसा इंतकाम लेना चाहता हूँ कि वो मेरे कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाए। आप फिक्र न करें हुजूर। डर, हुक्म करो। तुम ऐसा करो कि अभी अभी राणा को पैगाम भेज दो कि बादशाह सलामत उमरकोट जाने को तैयार हैं। अगर तुम मिलना चाहते हो तो जल्दी से आकर मिल लो। जल्दी करो, देर न हो जाए। हाजिर बाबला। अभी देखना हुजूर, शतरंज की चाल, प्यार कैसे बाजी को पलट लेता है। आओ आओ राणा, वतन लौटने की सारी तैयारी मुकम्मल है। अगर तुम वतन चलना चाहो तो हमें खुशी होगी, और अगर तुम यहां रहना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं। सहना, आज तुम शरबत पानी का भी नहीं पूछ रहे हो। देखो तो सही, हमारा प्यारा मेहमान आया है। आज जामे रुखसत मिलकर पिएंगे। हुजूर, शरबत हाजिर है। शरबत तो बहुत शीरीन है बादशाह सलामत। ये शरबत खास मुल्तान से आज ही मंगवाया है। बादशाह सलामत, ये न जाने मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि तुमको हमारे साथ उमरकोट चलना है। ये मेरे साथ धोखा किया गया है। मैं उमरकोट नहीं छोड़ना चाहता। हुजूर, उसको कल तक तो होश ही नहीं आएगा, और हुजूर जब उसे होश आएगा तो अपने आप को जंजीरों में जकड़ा हुआ उमरकोट के कैद खाने में खुद को कैद देखेगा। ये मैं कहाँ हूँ? मुमल कहाँ है? मुझे ये जंजीरों में क्यों जकड़ा गया है? साईं, तुम उमरकोट के कैद खाने में बंद हो। तुम्हें हमीर बादशाह ने बगावत के इल्जाम में कैद किया है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने बगावत की है? अगर प्यार करना हमीर सुमरों के आगे बगावत है तो फिर मैंने बगावत की है।
नातिर कितनी दिन से गई हुई है बहन सुमल? आराम से, तसल्ली से बहन। नातिर बेचारे पे गुस्सा मत उतारो। वो तो डेरे पे राणा के पीछे भागी भागी गई है, अभी आने वाली है। वो देखो नातिर भी आ रही है। वो तो अकेले आ रही है। नातिर बताओ मेरा राणा कहाँ है? साइण सुमरा खानदान के बादशाह राणा को घुट्टी पिलाकर ऊंट पर रस्सियों से जकड़कर चोरों की तरह उमरकोट रवाना हो गए हैं। मैं बर्बाद हो गई बहन सुमल। क्या बात है रानी साहिबा? नहार न सिंगार, लबों पर खामोशी की मुहर लगाकर चुपचाप फानूस को क्यों तके जा रही हो? वो देखिए बादशाह सलामत, फानूस के जाल में बेचारा पतंगा कैसे फंसकर कैद हो चुका है। हमें तो डर लग रहा है कि ये बेचारा इस कैद में मर न जाए। कहीं आपका इशारा राणा की तरफ तो नहीं? वो उमरकोट का बागी है, उसने सुमरा खानदान से गद्दारी की है। बगावत और राणा? नहीं बादशाह सलामत, मेरे राणा को आप माफ कर दे, मेरे राणा को आप माफ कर दे। रानी साहिबा, मैं राणा को आपकी जमानत पर आजाद करने को तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। हाँ। उसे कह दो कि उमरकोट की सरहद से बाहर कदम नहीं रखेगा। सिपाही जी हुजूर। रानी साहिबा का कैद खाने में राणा से मुलाकात का बंदोबस्त किया जाए। भाई, हाथों में पैरों में फौलादी जंजीरें, गले में बदनामी का तौक तो सिर्फ बागियों को डालकर मौत के परवाने आने तक जिंदान के काल कोठरियों में कैद किया जाता है। क्या मेरा भाई भी अपने पुरखों की इज्जत को खाक में मिलाकर, बगावत के अलम को लहराकर सुमरा खानदान से गद्दारी का ऐलान कर देगा? ये आप क्या कहती हैं हमशीरा मोहतरम? क्या आपको अपने लहू पर भरोसा नहीं है? मैं बेकसूर हूँ। हमने बादशाह सलामत से आपकी बात की है। वो एक शर्त पर राजी हुए हैं कि तुम उमरकोट की सरहदों से बाहर नहीं जाओगे। हमने हाँ करके अपनी शख्सी जमानत पर तुमको इस जिंदान से आजाद करने का परवाना लिया है। मैं अपने वादे को निभाने की कोशिश करूंगा। आइए राणा हुजूर, बहुत दिनों के बाद आपका दीदार नसीब हुआ है। हाँ, मेरे लिए क्या हुक्म है आका? भला ये तो बताओ मीरजत कि तुम्हें ये शाही ऊंट पालते कितना अरसा गुजर चुका है? हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी से शाही ऊंट पालते आ रहे हैं हुजूर। फिर तो आपको अच्छी तरह इन सारे ऊंटों का पता हो गया होगा। कौन सा ऊंट किस रफ्तार का है? कैसे पता नहीं हुजूर? वो जो ऊँटनी सामने देख रहे हैं ना, ये एक रात में 100 मील कर लेती है, और उसकी बच्ची को तो हमने अभी दौड़ा कर भी नहीं देखा। मुझे ये ऊँटनी चाहिए, सुबह तक तुम्हारे पास होगी, मगर राजदारी से। आप फिक्र न करें हुजूर, आप रात को आ जाएं और ऊँटनी आपको सफर करने के लिए तैयार मिलेगी। अब तो शायद रात का एक पहर खत्म हो चुका है। अब तो दिए भी मध्यम होते जा रहे हैं। मेरी सियाणी मुमल नीचे चलकर आराम करें। कैसे आराम करूं बहन? कल से आंख भड़क रही है। आज राणा के आने की खुशखबरी कबू ने काक महल लाकर पहुंचाई है। बहन सुमल, दुआ करो कि मेरा राणा आ जाए। सुन रही हो बहन? सुमल, दूर से कोई परदेसी ऊँट पर आ रहा है। हो न हो ये मेरा राणा होगा। सुमल, ये आवाज मेरे राणा के ऊँट के सिवा किसी और की हो नहीं सकती। मुमल में हमें तो यकीन था आप जरूर आएंगे, और आप आ गए। खुशामदीद राणा मेंद्रा। सुमल आपको सलाम अर्ज करती है। राणा मेंद्रा, मुमल आपके बगैर अधूरी थी। इसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। मुझे पूरा एहसास है बहन सुमल, आने के लिए मैं भी बेचैन था। क्या बताऊं, दोस्तों ने धोखे से उमरकोट ले जाकर बागी के लकब से नवाजा। मुमल, मुझे सवेर होने से पहले उमरकोट पहुंचना है। रानी बहन की वजह से मुझे जमानत मिली है, इस शर्त पर
कि मुझे उमरकोट नहीं छोड़ना। राणा, अगर आप फिर चले गए तो काक के सारे कमल मुरझा जाएंगे। काक महल को वीरान होने नहीं दूंगा। कई दिनों से मुमल के पास नहीं जा सका मिर्जत, आप मेरे लिए कुछ करें। बादशाह सलामत के हुक्म पर बेचारी ऊँटनी के पैरों में मिखें ठुकवा दी गई हैं। आपके पास इस ऊँटनी का बच्चा था, अब तो वो भी जवान होगा, वही मुझे दे दें। हाँ, वो आप ले जा सकते हैं। प्यारी ऊँटनी, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भुला सकूंगा। तूने अपनी मां से भी ज्यादा तेज रफ्तारी का मुजाहरा करके मुझे काक महल पहुंचा दिया है। अब तुम आराम करो। हाँ, ये दरख्त दीवार से बिल्कुल मिला हुआ है, मुझे अंदर जाने में बड़ी मदद करेगा। अरे, दीवार तो यहां से बिल्कुल छोटी है। मैं अंदर कूद जाता हूं। ठीक है। और ये कमरे तो कनीजों के हैं, मुमल ऊपर वाले कमरे में होगी। हाँ, ऊपर जाकर देखता हूं। यकीनन हाँ, इस कमरे में होगी, क्योंकि इस कमरे से मुझे मुमल की खुशबू आ रही है। क्या दरवाजे पर दस्तक दूं? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल होता हूं और उस मासूम हुस्न को नींद में सोता हुआ देखना चाहता हूं। खिड़की मुझे बिल्कुल आस्था से खोलनी चाहिए। ये क्या? शिव उमर के साथ और कोई? तूने मुझे धोखा दिया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर ऐसी बेवफा औरत को मारना राणा मेंद्रा की तौहीन है। ये चाबुक मैं तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं, जो कि सारी जिंदगी तुम्हारी बेवफाई पर तुम्हारी रूह को तड़पाता रहेगा। सुमन, सुमन, बहन सुमन, मैं लुट गई। मेरा राणा आया था और आपको मेरे साथ लेटा हुआ देखकर शक का शिकार हो गया है। अरे पगली, तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। इस चाबुक को देखो, ये राणे का है। इसे भी आप ख्वाब कहेंगे? राणा इस चाबुक को मेरे पास रखकर अपनी मौजूदगी जाहिर करके चला गया है। एक आस थी, वो भी टूट गई। सुहाग गया, बेगुनाह इज्जत पर धब्बा लग गया। मेरे जहन में एक तरकीब आई है। काक महल छोड़कर उमरकोट चलना चाहिए, शायद राणा राजी हो जाए और हम अपनी बेगुनाही का सबूत दे सकें। क्या हम उमरकोट चल रहे हैं? मगर एक शर्त है। मुझे एक तो क्या सारी शराइत मंजूर हैं। हम वहां सौदागर बनकर रहेंगे और राणा को अपना चेहरा किसी भी हालत में नहीं दिखाएंगे जब तक राणा राजी ना हो जाए। मरहबा राणा, मरहबा। आज फिर से तुम्हें दरबार में देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे सारे दरबार की रौनक दोबाला हो गई हो। अब फिर से महफिल जमेंगी, वही शतरंज की बाजियां होंगी। अब मेरा खेल से कोई वास्ता नहीं रहा बादशाह सलामत। दिल छोटा न करो राणा, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। सुना है राणा, तुम्हारे महल के सामने किसी विलायत से 2 सौदागर भाई आकर रह रहे हैं। हुस्न और दौलत में अपनी मिसाल आप हैं। शतरंज के दोनों भाई माहिर खिलाड़ी हैं। सेहना,
जो हुक्म मेरे साईं। सौदागर भाइयों को बड़ी इज्जत से दरबार में हाजिर किया जाए। बादशाह सलामत, हम दोनों भाई मिस्र के सौदागर हैं। हीरों की तिजारत हमारा खानदानी पेशा है। अपने वतन से बहुत बड़ा हीरों का जखीरा लेकर तिजारत करने निकले थे। मुल्क मुल्क शहर शहर घूमकर यहाँ की आबो हवा और यहाँ के लोगों की यकजहती देखकर हम भाइयों ने अहद किया कि हम जिंदगी के बाकी दिन उमरकोट में गुजारेंगे। अब आपकी इजाजत के मुंतजिर हैं। क्या ख्याल है हुजूर, हो जाए एक शतरंज की एक बाजी? ये आपकी जरा नवाजी है। शतरंज तो बस दिल बहलाने के लिए खेलते हैं। नौजवान सौदागर, ये दुनिया तो शतरंज का एक खेल है। हम सब उसके मोहरे हैं। शिकस्त खाते हैं तो कभी अपनी कामयाबी पर खुशियां मनाते हैं। मोहरे बेचारे तो होते ही मौत खाने को हैं, चाहे वो शतरंज की प्रसाद पर मौत खाएं या कहीं और। राणा, अपने मोहरे को संभालना, कहीं शक का शिकार हो जाए। अरे ये क्या, इसकी कलाई पर निशान शान 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 शान। कितने रूप बदल कर आओगी अब, और कितने जख्म लगाओगी? निकल जाओ यहाँ से, बेवफा औरत, निकल जाओ यहाँ से। बस राणा, इतने बड़े अलकाबों से न नवाजें। हम तो अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करने आए थे। आंखों देखी हकीकत को भला कोई झुठला सकता है? राणा, आपने अपने आगे बड़ी शक की दीवार खड़ी कर दी है। अब हम आपको अपनी सच्चाई का सबूत जरूर देंगे। कौन हो तुम? राणा मेंद्रा, मुझे गौर से देखो। मैं अपने मुंह से ये नकाब हटाती हूँ। तुम्हें गलतफहमी हुई है। सुमर, ये तुम हो क्या? काक महल में मूमल के साथ तुम थी? हाँ हाँ, वो मैं थी राणा मेंद्रा। तुम्हारी गैर मौजूदगी में दुश्मनों के खौफ से मैं रोजाना मर्दाना कपड़े पहनकर उसके कमरे में उसके साथ इसलिए सोती थी कि आने वाले दुश्मन को घर में राणा की मौजूदगी का एहसास हो। मगर ये मालूम न था कि ऐसा करने से मूमल का घर तबाह हो जाएगा, और तुम इस शक की अमरबेल में इतने उलझ गए कि तुम्हें सच और झूठ की तमीज भी ना रही। मैं वाकई मूमल का गुनहगार हूँ। अब पछताने से क्या फायदा? तुमने गलतफहमी दूर करने के बजाय इस सहरा के मासूम फूल पर ऐसे इल्जाम लगाए कि वो बेचारी बेकसूर मूमल आज अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए, अपने आप को जिंदा जलाने के लिए शहर के बड़े मैदान में आग में कूदने वाली है। ये तुम क्या कह रही हो सुमल बहन? मैं मूमल को मरने नहीं दूंगा। हाँ, मरने नहीं दूंगा। ये खूबसूरत औरत पागल तो नहीं है? अपने को आग में जलाने के लिए खड़ी है। नहीं, आग में जल रही है। ये क्यों आग में जल रही है? वो आग भी बहुत बड़ी है। मूमल, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मूमल। मैं आपका गुनहगार हूँ, मैं आपका गुनहगार हूँ। इसने आप पर शक किया। नीचे आ जाओ मूमल, मूमल नीचे आ जाओ। मेरे राणा सरताज, मेरे राणा सरताज, मूमल के राणा, मैं नहीं आ सकती। आपने अपनी मूमल को इतना गिरा हुआ समझा। अब हम हसीन मनूस चेहरा आपको दिखाना नहीं चाहते। हम अपनी नजरों में खुद गिर गए हैं राणा। आपने तो हमारा प्यार को सजने दाम नीलाम कर दिया। अब हम आपको अब मूमल का कोई तमन्ना नहीं है। अब हम जीना नहीं चाहते, नहीं चाहते। हम अपनी नजरों में गिर चुके हैं। अलविदा, अलविदा मेरी राणा, अलविदा। मूमल, 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 मैं आपको पढ़ने नहीं दूंगा। मूमल, मूमल, मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा। मूमल ने अपने आ रहा हूँ। मूमल, मूमल, मूमल मैं आ रहा हूँ। मूमल मैं भी आ रहा हूँ।
अच्छा तो ये मुगल थी। ड्रामा पेश किया गया मूमल राणो। किरदार और सदाकार: राणो महेंद्रा एम यहया भुट्टो, मूमल परवीन राजपर, सुमल साजिदा चांडियो, हमीर बादशाह महमूद हुसैन, रानी साजिदा राना, मीरजद मीर सोबदार सईद, नातिर गजाला रफी, सिंहड़ो अता काजी, डमर भट्टी मजहर शेख और सिपाही का किरदार हाशिम भट्टी ने अदा किया। रावी रेहाना शेख, तहरीर मुश्ताक चंगेजी, रिकॉर्डिंग इंजीनियर सैयद नबी हादी रिजवी, हिदायत मुख्तार मलिक। पेशकश रेडियो पाकिस्तान खैरपुर।